Hello everyone, this is Angel Imdad at Myco Studio with yet another interesting episode of Green Talks. Green Talks is all about the sustainable initiatives a person takes or at a company level so that आप लोग अपनी sustainability game को भी और strong कर सकें. So, today we have a very interesting topic to discuss, and the guest we have on board is Mr. Mohammad Omar Khan. Omar is an AI expert and an advisory board member of Pro AI Global. Welcome on board, Omar. Thank you so much, Angel, for inviting me here. And I was thinking कि जो AI का topic है, it's very important कि we should talk about it. And also, what is the role of AI in the green initiatives? So thank you for inviting me here. Perfect. So, Umar, थोड़ा सा अगर हमें बता सकें that what's Pro AI Global about? Okay, so Pro AI Global का जो initiative था हमने recently लिया था and we have a plan to spread the awareness of AI especially in Pakistan and the global level. So हमने ये initiative recently लिया and then we have recently taken another initiative or you can say it's a project under the Pro AI Global umbrella, that's a Build AI Nation. And in the Build AI Nation we have targeted to at least train 1 million youth on the AI, and this is I think it's a need of time कि हम अपनी youth को इस पर train करें, क्योंकि what I'm seeing is all about AI in the future. Definitely. And आप लोग बहुत amazing काम कर रहे हैं. Thank you. Training 1 million youngsters on this, it's very much needed. And Exactly. at the same time, लेकिन मैं बात करूँगी जब इतने लोगों को train करेंगे AI के लिए, lots of energy is being consumed. टेक्नोलॉजी पे आना बहुत ज़रूरी है. But again, understanding the fact कि AI के साथ साथ हमारी energy consumption and green initiatives कैसे उसके अंदर आएंगे. So if you can shed a light on it. श्योर बिल्कुल, असल में एआई जैसे हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, सिमिलरली हमारा जो सेक्टर है टेक्नोलॉजी सेक्टर, उनका एक ग्रीन एआई इनिशिएटिव भी है. सो इन द ग्रीन एआई इनिशिएटिव दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं कि कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सो दे आर स्टार्ट वर्किंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स जस्ट टू सेव सम कंजम्पशंस. सिमिलरली दे आर ऑप्टिमाइजिंग देयर एल्गोरिदम ताकि जो है वो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम से कम हो सके. At the same time, they are more working on the reusable energy side. So Nice. so they have a plan, like I can say Microsoft, Google. So they have a plan to convert all their technologies, all their data centers into reusable energy by 2030. सो दिस इज़ द थिंग, जैसे जैसे एआई भी ग्रो करेगी और हम रीयूजेबल एनर्जी पे जाएंगे, सोलर पे जाएंगे, तो आई बिलीव कि हम जो है अपने जो क्लाइमेट चेंज है उसको कंट्रोल भी कर सकेंगे. एंड दिस इज़ अ need of time as well. Definitely it is, and it's interesting to know कि Microsoft भी इसके ऊपर काम Exactly. कर रहा है, which is of course very much needed. अभी अभी recently US के president ने announce किया है that 500 billion Exactly. dollars जो हैं will go towards OpenAI. Exactly. अब जब इतना पैसा उसके अंदर जा रहा है, तो क्या कुछ परसेंट पैसा रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर लगा के कुछ सस्टेनेबिलिटी का भी ख्याल किया जा सकता है? सो कुछ पैसा नहीं, आई थिंक बहुत सारा पैसा जाने वाला है रीयूजेबल एनर्जी की तरफ. एंड सिमिलरली जो हार्डवेयर्स हैं, क्योंकि अभी तक जो भी एआई के हार्डवेयर्स हैं दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द ग्राफिक कार्ड्स, और जो ग्राफिक कार्ड्स हैं दे आर कंज्यूमिंग हाई एनर्जी, एट द सेम टाइम दे आर जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट. सो जो अभी तक और दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज, जो या हमारी एआई की इंडस्ट्री महंगी है, इसका एक चैलेंज ये भी है कि एक तो इस पर अमेरिकन रिसोर्स लगी हुई है. ओके. क्योंकि अमेरिकन जब काम करता है किसी टेक्नोलॉजी पे तो दे आर वेरी कॉस्टली. तो हम्म. इट्स अ वेरी कॉस्टली एरिया जहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स बनते हैं. तो दिस अमाउंट विल गो इनटू द आर&डी साइड ऑफ डिस्कवरिंग द न्यू वेज टू परफॉर्म द एल्गोरिदम्स, जिसमें अभी रिसेंटली गूगल ने एक चिप लॉन्च की है, सर इट्स विलो चिप, and they are claiming it's 10,000 times better than these graphic cards. So Wow. and it's a very small chip. It Okay. is consuming very low Less amount of energy? yeah, very low, very less amount of energy. At the same time, it is doing the calculation of 10,000. This is just this is not a confirmed number. Okay. I'm just giving you the estimate. If it is doing the calculation of 10,000 graphic cards, so it's saving a huge amount of energy. Nice, nice. Very So much so needed. so these this will go into the R&D.
डेटा सेंटर को जो हम रीयूजेबल एनर्जी पे लेके जाएंगे, सोलर पे लेके जाएंगे. सो ऑल दीज अमाउंट विल गो इन दिस एरिया एंड ऑल्सो इनोवेशन इन द एआई. परफेक्ट। सो इसी को सोचते हुए कि क्योंकि बहुत सारा काम हो भी रहा है एंड एज़ यू मेंशन कि जो चिप्स अवेलेबल हैं दे कंज्यूम मोर एनर्जी। अगर इसके ऊपर हम थोड़ी-सी अगर यू कैन इलैबोरेट अ बिट मोर कि जो हमारी न्यूअर जनरेशन है या पीपल हू गो आउट टू बाय स्टफ रिगार्डिंग लाइक चिप्स एंड मल्टीपल थिंग्स जो आपके पीसी में और टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रही होती हैं। तो कुछ ऐसी टिप्स होंगी कि उसको ध्यान में रखते हुए आप लें सो दैट विल बी मोर एफिशिएंट एज़ वे एंड विल कंज्यूम लेस एनर्जी एज़ वेल? सो अगर मैं टिप्स दूँ ग्राफिक कार्ड्स को लेने के लिए, तो आई थिंक गेमर्स ने तो नाराज़ हो जाना है मुझसे. सो दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द ग्राफिक कार्ड्स, बट आई कैन ओनली होप कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और जो न्यू वेज हैं, बिकॉज मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब हमने 50s 60s में हार्ड ड्राइव देखी थी, तो वो एक बड़ा सा एक जाइंट होता था. हुँ। नाउ इट्स दिस टेक्नोलॉजी कम्स इनटू अ वेरी स्मॉल शेप. सो वी आर होपिंग कि जो ग्राफिक कार्ड्स की टेक्नोलॉजी है, इट विल ऑल्सो नैरो डाउन, हुँ। and it will also be more efficient and more less power consuming. So we are hoping that, but for now Google has come up with a new chip, but I don't think so okay it's available for the commercial purpose of or for the public right now. हुँ। So we'll see कि कब तक एनर्जी मार्केट में आती है. एंड अदर देन दैट मेरा स्पेसिफिक जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है इन ग्राफिक कार्ड्स के ओके। अंदर. या एग्जैक्टली. So because this is mostly gamers and बट uh, देयर आर सम yeah, ऑप्शंस। but I can only see the things which we are using in हुँ। our companies, like to use the AI algorithms, to perform the AI algorithm. That is, we are using GeForce and A100. This is one of the graphic card, which is very famous for the AI stuff. मेक सेंस एंड आई थिंक मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं जो कि मुझे नहीं पता थी पहले। बट उसी को सोचते हुए अगर हम देखें तो हमने ये बहुत बात कर ली कि एआई क्या कर सकता है या उसकी सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट क्या हो Exactly. सकते हैं या नहीं है। थोड़ा-सा अगर हम इसके बारे में बात करें जैसे सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स अब जो है जैसे मेरी वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी है या कोई और दूसरा काम कर रहा है। तो ऐसे इफ यू कैन गिव अ लिटिल टिप्स मे बी और सम आइडियाज़ जो आप सोच सकते हैं या आपने काम किया हो किसी ऐसी क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स के साथ Mhm. जिसमें एआई को इन्वॉल्व करके द इम्पैक्ट हैज़ इंक्रीज्ड सो मच। बिल्कुल ठीक है. मैं ऐसा इससे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा हुँ, कि एआई कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है. बिकॉज जब हमें पता होगा कि क्या नुकसानात हैं, श्योर। तभी हम उसके प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं. सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. इट्स नॉट अ कंफर्म स्टडी, बिकॉज अभी तक ओपन एआई ने या माइक्रोसॉफ्ट ने या गूगल ने अपने बेंचमार्क रिलीज नहीं किए हैं, जो जैसे कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है. बट देयर आर सम स्टडीज विच इज़ गिविंग अस द एस्टिमेट. सो एक एस्टिमेट है कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें जो लगते हैं वो 284 मैट्रिक टन्स कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से इमिट होती ओके। है, एमिशन होता है. सो यू कैन से दैट, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज बताऊं, तो हमारी जो कार्स हैं, समझ लें आप पाँच पाँच कार्स ले लें, हुँ, और उसकी लाइफ टाइम जो कार्बन इमिशन है, इट्स इक्विवेलेंट टू दैट पार्ट. सो एक वाओ! लार्ज लैंग्वेज मॉडल is equivalent to 5 cars lifetime carbon emission. So it's a challenge. So we have to tackle this challenge, and using the AI, so we can do a lot of things. Especially अगर मैं बताता हूँ कि हम पहले तो एरियाज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई द एरियाज, देन वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. So we have the satellites available all over the world. या So AI can help us to identify where glaciers are melting. So इंटरेस्टिंग। this is one of the thing AI can help us with. At the same time, AI can help us to identify the green belts, which are हुँ, we can say जो जीआईएस जंगलात के हैं, थ्रू बिल्कुल या ऐसे ही है. जो जंगलात जो even not like we can say it's from images. या सैटेलाइट इमेजेस से ओके। भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो जंगलात पहले जो है वो काफ़ी हरे भरे थे. हुँ। सो हाउ दे आर डिक्रीजिंग, राइट। कैसे वो जो है क्या नाम है, बंजर होते जा रहे हैं या सूखते जा रहे हैं. सो इट विल हेल्प अस ऑन दैट पार्ट एज वेल. सिमिलरली जब हम ये एरियाज आइडेंटिफाई कर लेंगे, सो एआई कैन हेल्प अस टू इवन लाइक अगर मैं हमें अपने एसी की बात करते हैं. सो इफ़ वी आस्क एआई कि भाई मेरा ये एसी है और ये नॉर्मल एसी है, 1 टन का है, 2 टन का, तो इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कितनी जो है ये हुँ, कार्बन इमिशन रिलीज करता है. देन वी कैन आस्क एआई हाउ टू रिड्यूस इट, how it will help us in our life to include these goals. मैंने अपनी ज़िंदगी में भी एक गोल बनाया कि
कुछ ना कुछ कार्बन इमिशन कम करना है, सो आई जबरदस्त। टेक द हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। मैं उससे पूछता हूँ कि भाई एसी है, कितने पे चलाना चाहिए मुझे, और कितने पे ये ऑप्टिमाइज वे में चलेगा, और कैसे जो है हम इससे कुछ कुछ ना कुछ कार्बन्स को सेव कर सकते हैं। सिमिलरली वी अप्लाइड दिस थिंग इन आवर कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई किए, ताकि एज अ कंपनी, एज अ वी कैन से रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, हम्म। सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अपनी जो है ना क्लाइमेट का भी ख्याल रखना है। डेफिनेटली। और फॉर दैट पर्पज़ लाइक हम अपनी कार में भी फ्यूल बचाने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक जिस तरीके से यूथ में अवेयरनेस आ रही है, सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, और लॉट ऑफ पीपल आर कन्वर्टिंग टू सोलर। सो इट्स अ गुड, आई थिंक गुड टू सी कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है। सिमिलरली जो टेक्नोलॉजी भी आगे जा रही है, सो इट इज़ शिफ्टिंग टू द sustainable energy, it is shifting to the reusable energy. So I believe कि after some time we will achieve some goals, जितना हमने इस धरती को जो है वो दुख दिया है, उसको हम कुछ ना कुछ कवर अप करना स्टार्ट कर देंगे। डेफिनेटली, एंड आई ऑलवेज से कि इट्स कर्मा, जो हम एग्जैक्टली, देंगे वो हमें वापस एग्जैक्टली, मिलेगा। एग्जैक्टली, बट आई गेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि एआई की चैट जीपीटी से हम बाकी सब अपनी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, एग्जैक्टली, हम अपने प्रपोजल्स बना रहे हैं, अपनी एग्जैक्टली, प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं। बट अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो एआई कैन हेल्प यू गेट एनीवेयर एंड कैन हेल्प यू विद एवरीथिंग। एग्जैक्टली। आप पूछें उससे, और आपने तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, सॉल्यूशंस भी बता देगा। जैसे हमारी कंपनी भी काम करती है, ऐसे मैं अभी मल्टीपल मेंशन करने वाला था, सॉल्यूशंस आ मैं सकते हैं। मेंशन करने वाला था कि अभी रिसेंटली इरवर्दी के अंदर भी एक कार्बन इमिशन कैलकुलेटर बना रहे हैं। सो इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई योर या अप्लायंसेस, आइडेंटिफाई द वेस्टेज जहाँ से हम कार्बन इमिशंस को बचा सकते हैं। तो होपफुली ये हमारा इरवर्दी का कैलकुलेटर भी वेरी सून लॉन्च हो वेरी जाएगा, सुन। एंड इट विल हेल्प पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई देयर कार्बन इमिशन गोल। और जब गोल्स बन जाएंगे, मैं बड़ी एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को अचीव करना बड़ा आसान है। सो अगर आपने गोल बना लिया ना, तो आपने 50% अचीव कर लिया है। एंड आफ्टर लाइक क्रिएटिंग द गोल्स, इफ़ यू सेट एन स्ट्रेटजी, अगर आपने उस गोल को अचीव करने की स्ट्रेटजी बना ली है, यू आर 90% देयर, यू जस्ट नीड 10% एग्जीक्यूशन एंड यू आर गुड टू गो। परफेक्ट, perfectly said. एंड यू बीइंग फ्रॉम अ न्यू जनरेशन एज वेल, और हमारी जो जेनजीज हैं और आगे की जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनके लिए इफ आई वुड से कि आप सस्टेनेबिलिटी को दिमाग में रखते हुए एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी के लिए अगर कुछ आप टिप्स दे सकें या कुछ आउटकम उस तरह से वो न्यू जनरेशन भी उसको मद्देनजर में रखे, सो व्हाट विल इट बी? अच्छा, इसमें इसमें मैं मेरा एक ओपिनियन है, मैं अगेन आई विल कम टू द एआई, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी हॉट डिबेट दिस टाइम कि एआई विल मेक अस डम। या सो दिस इज़ अ वेरी हॉट क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट। तो मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है रिलेटेड टू द एआई, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप एआई से सारे काम कराएंगे तो आप खुद डंप हो जाएंगे, विद हाँ। टाइम आप चीज़ें भूल जाएंगे। सो दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। सो क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ ट्रांजिशंस, मैंने देखा जब ऑल्दो आई वॉज, मैं कह सकता हूँ कि मैंने वो एरा फिजिकली नहीं देखा, बट आई रेड अबाउट इट कि जब कैलकुलेटर आया था तो हम्म। लोग बोलते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप भूल जाओगे, आपको हिसाब किताब याद नहीं रहेगा। But now nobody is doing the calculation by ट्रू। itself. They are doing using the calculator. Similarly, I have seen कि जो लोग मैं छोटी सी एग्जांपल अपनी प्रोग्रामिंग लाइफ से देता हूँ। जब हम यूनिवर्सिटी में गए थे तो वहाँ पे असेंबली लैंग्वेज होती थी, हम्म। एंड असेंबली लैंग्वेज जा रही थी और हाई लेवल लैंग्वेजेस आ रही थी। तो वो लोग बोलते थे यार, जिसने हाई असेंबली लैंग्वेज नहीं सीखी वो प्रोग्रामर नहीं बन सकता। बट वी यूज इन सेमेस्टर, बट आफ्टर सम टाइम वी नेवर यूज असेंबली। आज मैं देखता हूँ कि जो नए बच्चे उनको पता भी नहीं असेंबली क्या है। So this is a transition we have to adopt, or AI will take us to the new level. It will upgrade our levels. If we adopt the AI, it will not make us dumb. Maybe like we will explore the new possibilities. We will explore the new, horizons. We will explore the new possibilities in the universe. So I think it will take us to the new level. So I will say my audience to adopt AI, use it as much as you can, but use it with logic. So using without logic will make you somehow dumb, but if you are using with your logic, with your understanding, it will take you to the new level. This is my message for my audience. Thank you very much. परफेक्टली सेड। लास्ट, अपनी जिंदगी में जो आप सस्टेनेबिलिटी हैबिट्स अडॉप्ट करते हो या सोच रहे हैं करने की नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो कुछ शेयर कर सकते हैं? So as I told you earlier कि मैंने थोड़ा सा प्लान बनाया हुआ है कि कहाँ कहाँ मुझे मुझे एनर्जी सेविंग हाँ। करनी है। सो आई थिंक द चेंज स्टार्ट फ्रॉम बाय इटसेल्फ। या तो सबसे पहले तो मुझे अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना है। सो आई हैव टेकन सम डिसीजंस, लाइक हमने अपनी जो घर की इलेक्ट्रिसिटी थी, जो बल्ब से, वी हैव कन्वर्टेड टू द एनर्जी हम्म। सेवर्स। सिमिलरली we have started using the inverters just to save some amount of energy as we can.
सो जहाँ जहाँ हम अपनी लाइफ में इनिशिएटिव ले सकते थे हमने लेना शुरू किया है, एंड वी ट्राई टू गो सोलर, ताकि हम जहाँ जहाँ ले सकते हैं, ऑल्दो इट्स अ वेरी बिग चेंज, इट विल नॉट कम ओवरनाइट, but if we start taking today, maybe like after 5 decades we will be standing somewhere जहाँ पे we will give something back to our world, will our earth actually. डेफिनेटली डेफिनेटली आई गेस हम सबको ये चीज़ें अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत Exactly. है अपने अपने लेवल पे. एंड आई गेस विद दिस नोट वील कम टू एन एंड ऑफ दिस Thank you very much. एपिसोड. एंड आई गेस एज उमर सेड कि एआई हमें बहुत सारी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ तो दे रहा है, मे बी नहीं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन है, बट वही एआई हमें उस एनर्जी के बेटर सॉल्यूशंस भी बता रही है. Exactly. So work on that, and thank you so much for listening to us and being a part of Green Talks. This Green Talks is exclusively available on Michael. Thank you.